Hi guys, good morning. Good morning, sir. Okay, I think Good morning, so. sir. Good Okay, morning. fine. So other can join. Just 5 minutes. Can we wait for 5 minutes? Yes, sir. Yeah. But before that, we just go with the revise part. What thing we are covered in yesterday session. Okay. So on yesterday we covered the thing like as we start the SQL part. So we go with the basic overview of the SQL. What is the SQL? What is the SQL statement? What is the DDL? What is the DML? What is the TCL? What is the DCL? What is the TRL और DQL? So इसके अंडर जो जो भी कमांड है हम लोगों को वन बाय वन देखना है. We need to understand the each and every command की टेबल क्रिएट कैसे किया जाएगा, ट्रंकेट कैसे किया जाएगा, रीनेम कैसे किया जाएगा, उसके अंदर डेटा कैसे डाला जाएगा, डेटा डिलीट कैसे होगा, डेटा अपडेट कैसे होगा, डेटा सिर्फ सिलेक्ट कैसे होगा, वंस यू परफॉर्म द योर डीएमएल ऑपरेशन देन उसको कमिट कैसे करवाना है, उसको रोल बैक कैसे करवाना है, हाउ वी अप्लाई द सेव पॉइंट, देन डीसीएल के अंदर अगर कुछ ऑब्जेक्ट बनाने के लिए या कुछ ऑब्जेक्ट रिलेटेड प्रिविलेजेस नहीं है काम करने के लिए तो वो कैसे लेने हैं फ्रॉम डीबीए. अगर कुछ ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस है और उसका वो पर्टिकुलर यूजर को कोई यूज नहीं है या फिर वो जो प्रिविलेजेस उसके पास है वहां से उसको रिमूव करवाना है तो वो रिवोक कैसे करेंगे. Okay, after that we just move to the small topic. We're not saying it is a small topic, but it's a very important. It's a data type. So what kind of data type we having? What kind of data type we having? Where 2. Welcome. Yeah, for New, the number data, we have the number data type. If you want to convert that number into the float or a decimal, then we are using the precise and scale. And second one is the we have the character related data type. First is the char, second is the varchar2, and third one is the varchar only. So here the main thing is that the difference between char and varchar2, it's a most important thing. Okay, your char data type is a fixed length data type and your varchar2 it's a variable length data type. And yes, the maximum size of the char data type is 2000 byte and varchar2 maximum size is 4,000. 4000 byte. So there is there is the padding mechanism is applied over the varchar2, means we are avoiding the wastage of memory. If you allocated the memory like as a 100 byte 200 byte but whatever data is there, so only that data size get acquired, the remaining size get released in a varchar2. And in a varchar it's also a variable length is work like as your varchar2, but there is the only one difference is the size difference. Clear? After that we have the date related data. Always we are working with the date related data. So how we store that date related data? So what is the data type for that? So we have the date data type, correct? So now we are going to store that data related to data. So it is in a oracle format. So after 2-4 session we are get understand how we store the different kind of date data like as a various format. Okay, was whatever business required, they require time as well, they require 24 hours, they required the different date format. So how we tackle with that thing we will see on later. Okay, is it clear? यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है? किसी को कुछ कल तक जितना पार्ट हुआ वहां पे किसी को डाउट है क्या? No, sir. Anyone having any concern, any doubt? No, sir. Okay. Now, today we're going to start the actual SQL. Okay.
yesterday we are seeing the overview of what is the DML, what is the DDL. Okay, so what do you mean by SQL? Anyone? What is the SQL? Sir, it's a programming language which is specially designed for database. Mm-hmm. Mm, What is the definition of the SQL? It is a structured query language Mm-hmm. which used to create, manipulate, and store the data from database. Okay. Anyone? It is a structural query language, and its most important keyword is it's a non-procedural query language. Yes, sir. Okay, it's a non-procedural, and it's operate over to the relational database. देखो, जब भी आप कोई आंसर करते हो, द इम्पोर्टेंट वर्ड भी देखो, आप जब भी कोई अगर किसी इंटरव्यूअर ने आपको पूछ लिया कि व्हाट इज द एसक्यूएल, द आंसर शुड बी लाइक दैट. द SQL is a structural query language and it's a non-procedural and it's operate over to the relational databases. So here structural query language, that's the most important keyword. Second one is it's a non-procedural, and third one is the operate over the relational database. These three keyword always in your answer. Clear? ये चीज समझ में आया? Yes, sir. ओके. आंसर करते टाइम में ना देखो, बहुत सारे लोगों को आपका थोड़ा सा लैंग्वेज का फ्लुएंसी नहीं होगा, थोड़ा सा बैरियर होता है. सम पीपल आर नॉट एबल टू फ्लुएंटली इंग्लिश. ओके, तो वहां पे क्या है कि आप जितना टेक्निकल वर्ड को एक साथ बनाओगे ना, देखो अभी यहाँ पे टेक्निकल वर्ड क्या है? स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, नॉन प्रोसीजरल एंड ऑपरेट ओवर द रिलेशनल डेटाबेस. अभी इसके बीच आप कैसे भी बात करो, बट ये तीन जो कीवर्ड है ना, वो आपके आंसर में होना चाहिए. देन इट इज बिकम द इफेक्टिव. उसके बाद आप इज डालो, वॉज डालो, दैट डालो, हेयर डालो, दैट डजंट मैटर, बट दिस थ्री कीवर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इज इट क्लियर? इज इट Yes, क्लियर? sir. Yes, sir. कोई भी आंसर करते टाइम ना, वो कॉन्सेप्ट के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, ओके. अभी आपको बोला व्हाट इज द डेट डेटा टाइप, देन व्हाट इज द डेट डेटा टाइप. इसमें इंपॉर्टेंट क्या है डेट डेटा टाइप के लिए? इट स्टोर्ड द डेट्स इन द ओरेकल डेट फॉर्मेट. ओके, इट्स स्टोर द डेट रिलेटेड डेटा. सो डेट रिलेटेड डेटा, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड. गॉट इट? अभी आपको बोला कि varchar 2 में क्या है. what you mean by varchar 2? what kind of data is storing? varchar 2 what kind of data is storing? Alphanumeric. Alphanumeric keyword is the most important. Variable length, and third one is the size. Okay, it's storing the variable length record, alphanumerical, and the maximum size is 4000 byte. ऐसे बात करना है. समझ में आया ये वाला चीज? देखो, जब भी आप कोई आंसर कर रहे हो तो वहां पे जो कीवर्ड इंपॉर्टेंट है वो डिलीवर करना सीख लो पहले. देन योर इंटरव्यू बिकम द इफेक्टिव. जितना टेक्निकल बात करोगे, देखो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपका ग्रामर बहुत सही होना चाहिए. ईज का वॉज हो जाए, दैट टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर अगर ईज का वॉज भी हो जाता है, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर. नहीं. तो आपका जो टेक्निकली चीज है, टेक्निकली कीवर्ड है, वो आपके आंसर के अंदर इंक्लूड करना सीख लो. ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होगा. सो वी हैव द लाइक एज अ 4 months we are working together. So I will tell you how we answer the questions. So ये चीज को थोड़ा सा आपके दिमाग में बना लेना है कि सर हाँ, इसका आंसर करना है तो इसके अंदर के जो मेन कीवर्ड है वो आपके साथ होना जरूरी है. आई एम नॉट आस्किंग टू होल्ड करेक्ट definition of that particular concept or anything else. I just need the what kind of technical word we are using into the that particular concept. That's the most important thing. ये चीज हमेशा ध्यान में रखो. आप कहीं पे भी कौन से भी इंटरव्यू के लिए जाओ, जब भी आप इंटरव्यू में देखो, अगर आप नॉन टेक्निकल फील्ड से है
और आपको बोला गया कि आपका इंटरव्यू टीसीएस के साथ शेड्यूल किया गया, नॉन टेक्निकल फील्ड है, या फिर आपने किसी डोमेन के ऊपर काम किया है, तो क्या होगा? तो आप वहां पे कैसे बात करते हो? या फिर आपने फिनेंस डिपार्टमेंट या डोमेन के ऊपर काम किया है, तो व्हाट शुड बी आंसर? सपोज आपको पूछ लिया व्हाट इज द फिनेंस डोमेन, देन फिनेंस डोमेन क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? A domain which are maintaining the transaction, revenues, credit, debits. तो ये जो कीवर्ड है इट्स रिलेटेड टू दैट फील्ड, बराबर, रेवेन्यू, क्रेडिट, डेबिट एंड ट्रांजैक्शन, करेक्ट? तो ये वर्ड आपके आंसर में होना चाहिए, यस और नो? यस सर। तो इस तरीके से बात करना है, क्लियर? देखो अभी हम लोगों को करना क्या है, हम शुरू करेंगे डीडीएल कमांड को पहले। देखो अभी एक्सेल के अंदर अगर आपको एक टेबल बनाना है तो आप क्या क्या करते हो? एक सिंपल प्रोसेस जो कि आज तक हम लोगों ने फॉलो किया है, ईच एंड एवरी पर्सन नो टू हाउ टू यूज द एक्सेल शीट। सबको पता है एक्सेल शीट बनाना, उसके ऊपर डेटा लिखना, ओके। अभी मैंने आपको बोला कि एक्सेल शीट के ऊपर एक टेबल बनाना है, देन व्हाट्स योर फर्स्ट स्टेप? क्या करते हो? सपोज ये एक्सेल शीट, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं अभी, या इट्स विजिबल? यस सर। ओके, ये एक्सेल शीट आपके सामने खुली है, इसके ऊपर मैंने मेरा रिक्वायरमेंट बताया कि आई वांट टू क्रिएट द टेबल। तो टेबल क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीज लगेगा? कितने कॉलम लगेंगे या रोज कितने ओके, लगेंगे वो सबसे डिसाइड। पहले एक चीज होगा सर, मैं क्या करता हूं, टेबल का नाम डिसाइड कर लेता हूं, टेबल नेम, ओके। उसके बाद आप क्या बनाते हो? कॉलम, वट एवर कॉलम हेडिंग यू रिक्वायर्ड। सपोज आपको चाहिए सर एक सीरियल नंबर, ओके, और आपको चाहिए एक नेम कॉलम, आपको एक चाहिए डीओबी कॉलम, आपको चाहिए एक एड्रेस कॉलम, ओके। इस तरीके से आप बनाते हो। सपोज मैंने इसको बॉर्डर लगा दिया यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, इस तरीके का आपका टेबल बनता है, ओके, इस तरीके से बनता है। यस देखो सीरियल नंबर, नेम, डीओबी, एड्रेस, इस तरीके से आपका टेबल बनता है एक्सेल शीट के ऊपर। देन वी जंप टू द एसक्यूएल। फर्स्ट ये चीज समझ लो, सपोज मुझे क्या करवाना है, ये जो टेबल है इसके ऊपर एक नया कॉलम डालना है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे जाके नया कॉलम डाल देते हो। सपोज मैंने डाला जॉब, नया कॉलम ऐड हो गया। इन फ्यूचर आपको लगा कि ये एड्रेस वाला कॉलम है ना, यहाँ पे मुझे इसका नाम चेंज करवाना है, एड्रेस डिटेल, रीनेम कर दिया कॉलम को। मुझे ये टेबल का नाम पसंद नहीं है, ओके, मुझे ये टेबल का नाम करना है एम्प्लॉय डिटेल्स। टेबल का नाम चेंज कर दिया, कॉलम का नाम चेंज कर दिया, एक एडिशनल कॉलम कर दिया। नेक्स्ट थिंग कि मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए, मुझे होल कॉलम ड्रॉप करवाना है, उसको कर सकते हो। या फिर आपको इसके अंदर कुछ डेटा गया इस तरीके से, और आपको इन फ्यूचर ये डेटा का जरूरत नहीं है, होल डेटा जितना भी डेटा रहेगा लाइक दिस, ओके, मुझे क्या करवाना है, इसको रन करवाना है। दिस ऑल कमांड्स, देखो डीडीएल के अंदर हम लोगों को क्या क्या कमांड्स आती है, वी नीड टू क्रिएट द टेबल, अल्टर द टेबल। अल्टर ये चीज क्या है कि अगर आपके पास एग्जिस्टिंग टेबल है उसके ऊपर अगर आपको नया कॉलम ऐड करवाना है, कॉलम को रीनेम करवाना है, कॉलम को मॉडिफाई करवाना है, या कॉलम को ड्रॉप करवाना है, देन वी आर यूजिंग। तो इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या मिलेगा? पहला चीज है कि अगर आपको कॉलम को ऐड करवाना है,
कॉलम के ऊपर मॉडिफिकेशन करवाना है, मतलब कॉलम का डेटा टाइप चेंज करवाना है या उसका साइज चेंज करवाना है या कंस्ट्रेंट चेंज करवाने हैं, देन वी आर यूजिंग द मॉडिफाई। ओके, उसके बाद मुझे वो कॉलम ही नहीं चाहिए, देन आई यूज द ड्रॉप द कॉलम। मुझे वो कॉलम का नाम चेंज करवाना है, पुराने नेम से नए नेम तक लेके जाना है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने अभी एड्रेस टू एड्रेस डिटेल करवाया, देन वी हैव द रीनेम। ओके, उसके बाद DDL के अंदर और एक कमांड है, इट्स कॉल्ड एज अ ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या करेगा, ये टेबल के अंदर जितना भी डेटा है इसको वो परमानेंटली रिमूव कर देगा। इफ यू अप्लाई द ट्रंकेट ओवर द एनी टेबल, देन व्हाट हैपन, द होल डेटा गेट रिमूव्ड परमानेंटली। आप इसको रोल बैक, जैसे कि हम लोग अंडू ऑपरेशन, सपोज मैंने इसको डिलीट किया और यहाँ पे मैंने अंडू ऑपरेशन करवाया, तो ये क्या होता है, वापस आ जाता है। बट अगर आपने टेबल के ऊपर ट्रंकेट ऑपरेशन चलवाया तो वहां पे क्या होगा सर, कि आपका ये डेटा वापस नहीं आएगा, इट्स रिमूव्ड परमानेंटली फ्रॉम द टेबल। ओके, उसके बाद है रीनेम। देखो रीनेम में क्या है कि आपका जो टेबल का नाम है, अगर आपका पहला नाम था जस्ट वी पुट एज अ नेम। ओके, टेबल का नाम हम लोगों ने क्या लिया था पहले, नेम। ये मुझे क्या करना है, बदलना है, मुझे इसको चेंज करवाना है, दूसरा नाम लगवाना है, देन वी आर यूजिंग द रीनेम कमांड। इज इट क्लियर? नाउ Yes, sir. सब लोग ये वाला स्क्रीन ओपन करोगे, पैरेलली वी आर गोइंग टू राइट द क्वेरीज। ओके, देखो क्रिएट कमांड यूज टू क्रिएट द डेटाबेस ऑब्जेक्ट। create command is it used to create the database object, like as table create करवाना है, view create करवाना है, synonyms create करवाना है, अगर आपको इंडेक्स क्रिएट करवाना है, so on। जितने ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करवाने हैं डेटाबेस के अंदर, जितने ऑब्जेक्ट है, देखो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या क्या आप बना सकते हो। यहाँ पे आइए, ये स्क्रीन दिख रहा है मेरा एसक्यूएल डेवलपर का। अगर Yes, आपको sir. टेबल बनवाना है, आपको अगर व्यू बनवाना है, अगर आपको इंडेक्स बनवाना है, पैकेज बनवाना है, प्रोसीजर बनवाना है, फंक्शन बनवाना है, ट्रिगर बनवाना है, टाइप, सीक्वेंस, मटेरियलाइज व्यू लॉग, सिनॉम्स, यूजर्स, डायरेक्टरीज, डेटाबेस लिंक, तो ये सारे ऑब्जेक्ट हम लोगों को देखने, दीज आर द डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो आपका क्रिएट वाला कमांड क्या क्या काम करेगा, क्रिएट टेबल, टेबल बन जाएगा, क्रिएट व्यू, व्यू बनाएंगे, क्रिएट सिनम्स बनाएंगे, इंडेक्स बनाएंगे, सीक्वेंस बनाएंगे, प्रोसीजर बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, पैकेज बनाएंगे, ट्रिगर बनाएंगे। सो व्हाट एवर रिक्वायरमेंट वी हैव, विद द हेल्प ऑफ द दैट क्रिएट कमांड वी आर क्रिएटिंग द दैट ऑब्जेक्ट। देखो अभी सिंपल सा चीज, वी स्टार्ट विद द टेबल, बाकी के ऑब्जेक्ट वन बाय वन हम आगे जाके देखने ही वाले हैं, बट स्टार्ट विद द टेबल, हाउ वी क्रिएट द टेबल। देखो हम लोगों को क्या करवाना है, जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेल शीट पे टेबल बनवाया ना, सेम चीज हम लोगों को डेटाबेस के अंदर करवानी है। तो उसके लिए कमांड देखो, जस्ट I just provide the syntax first, then we are go and create the one table. Okay, create table, table name. Okay, create table, table name। उसके बाद इनटू ब्रैकेट आपको क्या डालना है, वो टेबल के कॉलम क्या क्या होंगे। सपोज कॉलम 1, ये कॉलम में किस तरीके का डेटा जाएगा, मतलब यहाँ पे वी आर टेकिंग द डेटा टाइप, और वो डेटा टाइप का साइज कितना होगा। सो ऑन, आप n नंबर ऑफ टेबल्स बना सकते हो। यहाँ पे क्या है, आपका साइज है। क्लियर? इस तरीके से आपका टेबल बनेगा। अगर मैंने आपको बोला कि मेरा टेबल का नाम स्टूडेंट डिटेल होगा और उसके अंदर मेरे 10 कॉलम होंगे, ओके, सपोज स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, स्टूडेंट नेम होगा, स्टूडेंट के सब्जेक्ट होंगे, करिकुलम एक्टिव होगा, कॉन्टैक्ट होगा,
डेट ऑफ बर्थ होगा, एड्रेस होगा, उसका स्टैंडर्ड होगा. तो सपोज वी नीड टू अप्रोक्सीमेटली 5 कॉलम. सो हाउ वी क्रिएट द टेबल देन? कैन गोइंग टू टेल मी हाउ वी क्रिएट द टेबल देन? टेबल का नाम देखो, रिक्वायरमेंट लिख लो. टेबल नेम शुड बी student details. Okay, first column is roll number. Data type of this is number and size is 20. Okay, इस तरीके से. ओके, ये आपका रिक्वायरमेंट है. मैं ये आपको यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट देता हूं कि आपका टेबल नेम जो होगा वो होगा स्टूडेंट डिटेल्स. देखो, नेमिंग कन्वेंशन के बारे में अगर आपको सोचना है तो आपका दो जब स्ट्रिंग लेते हो, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने लिया स्टूडेंट डिटेल. ओके, तो यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग को अलग मत कीजिए, एक ही लिख दीजिए स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल. आपका अगर सीरियल नंबर लगवाना है, सपोज अभी हम लोग बनाएंगे कि सर हम लोगों का रिक्वायरमेंट है कॉलम नेम क्या करवाने हैं, तो कॉलम नेम आप ऐसे डाल सकते हो सीरियल नंबर. आप अगर ऐसे डालोगे सीरियल नंबर, देयर इज नो अंडरस्कोर, तो ये आपका काम नहीं करेगा. देखो, नेमिंग कन्वेंशन एज ए एक्सपीरियंस कैंडिडेट, अगर आप 2 साल 3 साल 4 साल 1 साल 6 महीने जितना भी एक्सपीरियंस लेके जाते हो मार्केट के अंदर, तभी आपको दिक्कत क्या होती है सर, कि ये जो नेमिंग कन्वेंशन होता है इट शुड बी अ प्रॉपर. ओके, सपोज आप एक अकाउंटिंग टेबल बना रहे हो, तो उसका नाम कैसे होगा? अकाउंट डिटेल अंडरस्कोर बैंक, अकाउंट अंडरस्कोर डिटेल अंडरस्कोर बैंक. टेबल के नाम इस तरीके से होंगे और कॉलम के नाम इस तरीके से होंगे कि सेपरेट एंटिटी नहीं लेगा कोई. ये चीज सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, नेमिंग कन्वेंशन में थोड़ा सा ध्यान दीजिए. देखो, अभी हम लोग यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, एक नॉर्मल सा टेबल, कि मुझे एक टेबल बनवाना है, उसका नाम होगा, सपोज आप मुझे बताओ क्या नाम लेना है. क्रिएट टेबल, नाम बताओ टेबल का. डेमो 14. ओके, इनटू ब्रैकेट मैंने लिया सीरियल नंबर. देखो, इधर आप इसमें देखो इस तरीके से कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली सीरियल नंबर कर सकते हो. देयर इज अ नो स्पेस रिक्वायर्ड. इसका डेटा टाइप सपोज मुझे नंबर करवाना है, उसका साइज मैंने 20 करवाया. सेकेंड कॉलम आई नीड टू क्रिएट एज अ नेम. ओके, इसका डेटा टाइप सपोज मैंने varchar 2 करवाया. व्हाट्स द रीजन आई एम यूजिंग द varchar 2? व्हाट्स द रीजन? Wastage. रोकने के लिए. साइज varchar 2 it's holding the variable length. Second one is the it's alphanumerical value, or third one is the there is working is a padding mechanism. So there is a, suppose we having the 4 alphabet name, then it's a releasing the 16 bytes as well, means वहां पे waste of memory नहीं होगा. देखो, अभी यहाँ पे एरर आया, this name is already used by existing object. देखो, कल हम लोगों ने एक टेबल बनाया था ये वाला सेम नेम से. अगर आप सेम नेम से सेम ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो वो एरर देगा आपको, दिस नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट. ओके, नेम इज ऑलरेडी यूज्ड बाय एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि डेमो 14 आपका ऑलरेडी बनाया था हम लोगों ने कल. वंस यू क्रिएटेड टेबल इट्स परमानेंटली स्टोर टू योर डेटाबेस लोकेशन. ऐसा नहीं कि आपने सिस्टम बंद कर दिया और वो चला जाएगा. ऐसा रहेगा तो वो डेटाबेस का कोई मतलब बनेगा क्या? बनेगा? बनेगा क्या? No, sir. हाँ, तो सेम नेम का सेम अगर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो इट्स शोइंग द नेम इज ऑलरेडी यूज्ड बाय द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट. डेमो 14 ऑलरेडी था. सो व्हाट वी डू, हम इसको क्या करते हैं, डेमो 15 बनाते हैं. अभी
टेबल गेट क्रिएटेड, ये चीज समझ में आया हाउ टू क्रिएट द टेबल? सर ये सीरियल नंबर के आगे आपने 20 लिखा है, वो क्या डिनोट कर रहा है? कौन सा 20? सीरियल नंबर सर, ऊपर क्रिएट नेबल डेमो 15 सीरियल नंबर 20। तो सर 20 आपने उसका साइज लिया हुआ है साइज, कि ये सीरियल नंबर कितने साइज तक डेटा होल्ड कर सकता है। तो 20 सर इट विल बी इन रो, मतलब कि 20 डिजिट्स इन अ सिंगल कॉलम, ये आप यस ये यस डिनोट कर रहा है? यस, 20 ओके। डिजिट इन अ सिंगल सेल। ये यहाँ पे देखो, हम्म। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अपने मैक्सिमम कितने डिजिट जा सकते हैं, ये सिंगल सेल के बारे में सोचते हैं। सो सर इसमें यूजली वी नो कि सीरियल नंबर, जस्ट फॉर एग्जांपल सर, कि सीरियल नंबर में वी नो कि सीरियल नंबर बहुत 20 डिजिट तक नहीं जाता, मैक्सिमम हाँ, 2 या ये 3 फॉर डिजिट तक जाता है। एग्जाम्पल दिया मैंने, ये आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया, फॉर एग्जाम्पल। ओके ओके अभी ओके ओके। आपके पास रिक्वायरमेंट आएगा कि आपका 11 डिजिट तक जाएगा, 10 डिजिट तक जाएगा, 15 जाएगा, इसका मैक्सिमम कितना जाएगा? ओके 20। मैक्सिमम कितना जाएगा? नंबर का मैक्सिमम कितना जाता है? 37 बताया था सर आपने कल। 38 जाता है, 38. सॉरी 38, हाँ। 38 जाता था। ओके, राइट। 38 जाता है, तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 38 तक जा सकते हो, उसके आगे नहीं जा सकते नंबर के लिए। ओके ओके। Okay, means it's holding the maximum 20 digit string, maximum 20 digit। बेसिकली सीरियल नंबर आप बोलते हैं कि 20 तक नहीं जाएगा, अगर आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो जा सकता है। ओके सर। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट, इट्स डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट। सपोज आपका सीरियल नंबर, या फिर मैंने और एक ये टेबल को मैं ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम डेमो 14 को भी मैं ड्रॉप कर देता हूँ और 15 को भी मैं ड्रॉप कर देता हूँ। अभी ये आपके सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, चलो मैं अभी एक काम करते हैं, क्रिएट टेबल डेमो 14 इनटू ब्रैकेट। देखो, सीरियल नंबर आपको पता है मैक्सिमम 10 डिजिट तक जाएगा, इसका डेटा टाइप नंबर होगा। आप यहाँ पे आपके हिसाब से डाल सकते हो 10। तो इसका मैक्सिमम साइज कितना जाएगा सर? अभी मैक्सिमम साइज 10 कितना जाएगा? 10। 10। 10. ओके, नेम, इसका सपोज मैंने varchar 2 लिया। अभी आपको पता है कि बहुत सारा बड़ा नाम आने वाला नहीं है। ओके, इट्स हार्डली गोज टू द 15 डिजिट, 15 अल्फाबेट्स, तो मैंने इसको 15 बना लिया। मैंने और एक देखो, अभी एक चीज होता है जिप कोड। जिप कोड ऑलवेज इज अ नंबर और अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होता है जिप कोड? जिप कोड Numerical value. न्यूमेरिक वैल्यू होती है सर। हाँ, सपोज आप इंडिया के बारे में सोचोगे तो जिप कोड का वैल्यू एज अ न्यूमेरिकल। आप यूएस यूके में जाओ तब दे हैविंग द अल्फाबेट इन अ जिप कोड, यस और नो? पोस्टल कोड का। यस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, varchar 2 लेंगे। अभी आपको पता है कि मैक्सिमम साइज कितना आने वाला है जिप कोड का? कितना आता है? चलो इंडिया के बारे में सोच लेते हैं कि जिप कोड का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? 6 होता है 6। इंडिया तो में। ये सिनेरियो में आप यहाँ पे डायरेक्टली 6 यूज कर सकते हो। नो नीड टू गो विद द वैरियस, बिकॉज आप लोगों को पता है कि ये इसके आगे जाने वाला नहीं है या इसके पीछे आने वाला नहीं है। जिप कोड हैविंग द इट्स ओन फॉर्मेट, उसका डिजिट का लेंथ सबको पता है। ओके, तो आपका जिप कोड कितने डिजिट होल्ड करेगा? सिर्फ 6। 6 डिजिट तक। आई बात समझ में? इज इट क्लियर? यस सर। आई बात समझ में सबको? चलो एक सैंपल में आपको बताता हूँ हाउ, एंड वंस यू क्रिएट द टेबल, और उसके बाद हम लोगों को देखना है कि इसका स्ट्रक्चर बना कैसे। ओके, देखो, क्रिएट टेबल डेमो 14, एक कॉलम लिया मैंने, सीरियल नंबर, उसका डेटा टाइप करवाया मैंने नंबर, साइज दिया मैंने मैक्सिमम इन। ओके, उसके बाद मैंने किया नेम,
var_char2 साइज किया मैंने 15। ओके, उसके बाद मैंने एड्रेस लिया। अभी देखो एड्रेस का क्या होगा सर, एड्रेस का डेटा साइज कितना होगा और डेटा टाइप क्या होगा, डेटा टाइप क्या होगा एड्रेस का। देखो एड्रेस के अंदर वी हैव द अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू, वी हैव द स्पेशल कैरेक्टर, वी हैव द, ऐसा होता है ना कि सर फ्लैट नंबर हाइपन, देन वी हैव द दिस फ्लैट नंबर, देन दिस स्ट्रीट, देन अगेन कॉमा, देन नियर लैंडमार्क जो भी होगा, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, विलेज होगा या सिटी होगा, इंडिया होगा, कंट्री होगा, बराबर। इस तरीके से तो ये कितने साइज तक होल्ड कर सकता है, आप बताओ मैक्सिमम साइज। और डेटा टाइप क्या होगा, देखो varchar वेर तो कर आने वाला है। ओके, मैक्सिमम साइज कितना होगा, कैन आई पुट एज अ 500, हो सकता है 500 अल्फाबेट्स आ सकते हैं आपके एड्रेस के अंदर, अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू 500 आ सकती है, यस और नो। यस ये बन गया आपका टेबल। अभी आपको चेक करना है कि मेरा स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसके लिए देखो एक कमांड यूज करनी है, डिस्क्राइब। आप पूरा डिस्क्राइब डाल दीजिए या फिर DSC करके आपके टेबल का नाम डाल दीजिए Demo14। देखो यही चीज बनाया हम लोगों ने, मेरा कॉलम का नाम सीरियल नंबर था, उसका डेटा टाइप नंबर था और उसका साइज क्या था 10 था, इज इट। दूसरा कॉलम मेरा ये था कि सर नेम था, उसका डेटा टाइप मेरा var_char2 था और साइज 15 था, यही चीज हम लोगों ने बनाया। यस उसके सर बाद एड्रेस, डेटा टाइप इज var_char2 और साइज इज 500 बाइट्स। क्लियर, समझ में आ रहा है। यस देखो मैं आपको 1 मिनट है। देखो अभी ये कर लिया कि सर मैंने जो टेबल बनाया वो मुझे डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला कमांड यूज करूंगा, डिस्क्राइब देन योर टेबल नेम। तो आपने जो भी चीज बनाया वो आपके सामने आ जाएगा। अभी ये चीज क्यों लगेगा, देखो हर एक टेबल तो आप नहीं बना सकते, ओके। हर एक चीज आप तो बना नहीं सकते। एक टेबल आपके दोस्त ने, आपके कलीग ने बनाया, दूसरा किसी ने बनाया, किसी और डेवलपर ने बनाया और वो डेवलपर छोड़ के चला गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना वो टेबल के अंदर क्या है। 1 मिनट है, एक्चुअली आई एम गेटिंग कॉल। अभी देखो अगर एक डेवलपर आपसे पहले काम कर रहा था, वो क्या किया, उसने एक टेबल बना के उसके ऊपर जो भी डेटा था ऑपरेशन उसके एंड से उसने काम करके वो रिजाइन करके चला गया। अभी नेक्स्ट टाइम आपको बोला गया कि वी नीड टू वर्क ऑन दैट टेबल, या फिर वो टेबल के अंदर कुछ एंटिटी है, मतलब कॉलम नेम है, वो आपको चेंज करवाने हैं या डेटा टाइप चेंज करवाना है या फिर कोई नई डेटा टाइप डलवाना है, तो आपको वो टेबल पहले समझना पड़ेगा। तो उसके लिए आप सबसे पहला चीज करोगे कि आप उसको डिस्क्राइब करोगे ये टेबल को, ओके। तो आपको सारा उसके अंदर जितने भी कॉलम है, डेटा टाइप है, कंस्ट्रेंट है, जो भी चीज की हुई है वो आपके सामने आ जाएगी यूजिंग द डिस्क्राइब, यस और नो। यस सर। अगर आपने टेबल बनाया, देखो आज एक टेबल बनाया मतलब पूरे 4 महीने में आप लोगों ने बनाया अप्रोक्सीमेटली 100 टेबल्स। हर एक टेबल का तो आपके ध्यान में नहीं रहेगा कि सर टेबल का नाम ये लिया था, इसके अंदर ये कॉलम डाले हुए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसको क्या करोगे, डिस्क्राइब करोगे, ओके। आप उसको क्या करोगे, डिस्क्राइब करोगे, समझ में आया।
और देखोगे कि कॉलम के नाम क्या है, डेटा टाइप क्या है, देन अकॉर्डिंग यू स्टार्टिंग वर्किंग ऑन इट। करेक्ट? ये चीज समझ में आया? चलो मैं आपको एक फॉर एग्जांपल इन जनरल एग्जांपल देता हूं, पूरा मैं डीएमएल आपको पहले समझाता हूं। देखो अभी सब लोगों का एक ड्रीम होता है सर, खुद का घर बनाएंगे, यस और नो? है ना? Yes. सबका ड्रीम है ना कि सर मेरा एक अच्छा सा ड्रीम है सर कि क्या करना है कि व्हेन आई गेट प्लेस, मुझे अच्छा सा सैलरी आएगा तो मैं एक काम करूंगा सर, पुणे के अंदर ना एक फ्लैट ले लूंगा, या फिर मेरे घर जो मेरा होम टाउन है वहां पे अच्छे से हवेली बनाऊंगा, यस और नो? सबका Yes. सपना है। Yes, sir. ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब ठीक है आप सेटल भी हो गए, अच्छा सैलरी भी आ रहा है, यू हैविंग द लॉट ऑफ सेविंग, देन यू आर डिसाइडिंग टू प्लान अ हाउस, या फिर आपको फ्लैट लेनी है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट, सपोज मान लो कि आपको एक घर बनवाना है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो सर? क्या करते हो? लोकेशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले लोकेशन फाइंड आउट करते हो। आपका लोकेशन फाइनलाइज हो गया, ओके फाइन, आई एम एबल टू बिल्ड हाउस हियर, इट्स अ वेरी गुड लोकेशन एज पर माय रिक्वायरमेंट। उसके बाद आप क्या करते हो सर? एक प्लान बनाते हो कि सर मेरा इतना बड़ा सा लैंड है, इसके अंदर मुझे घर बनवाना है, बराबर? यही चीज करते हो, यस और नो? Yes. गाइस प्लीज रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। देखो Yes, sir. उसके बाद आपका सर मेरा यहाँ पे ना ये इतने बड़े लैंड पे ना सर यहाँ पे मेरा गार्डन होगा। ओके, उसके बाद क्या है सर, यहाँ पे मेरा ना ये लिविंग रूम होगा सर, यहाँ पे मेरा इतना सा किचन होगा सर, यहाँ पे मेरे 2 बेडरूम्स हो गए सर, एक वन इज द मास्टर बेडरूम, इस तरीके से। ओके, यहाँ पे मेरा एंट्रेंस होगा, ये होगा, वो होगा, ये स्टोर रूम होगा, ये गेस्ट रूम होगा, अपर फ्लोर पे फर्स्ट फ्लोर पे क्या होगा, ये आपके सारे दिमाग में आता है। मींस वी आर प्लानिंग अ स्ट्रक्चर, बराबर? Yes. वी आर प्लानिंग अ स्ट्रक्चर। सेम डेटा के लिए हम लोग पहले क्या किया? क्रिएट टेबल किया। जैसे आप घर बना रहे हो वैसे ही हम लोगों ने क्या किया, आपका जो डेटा आने वाला है उसको स्टोर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? एक स्ट्रक्चर बनाया। चलो वापस यहाँ पे आ जाओ। अभी सीरियल नंबर में किस टाइप का डेटा जाएगा? किस टाइप का डेटा जाएगा? Numerical. नंबर। Numerical. नेम में अल्फा न्यूमेरिकल, एड्रेस में भी अल्फा न्यूमेरिकल। वापस चलते हैं आपके एग्जांपल के ऊपर। अभी इन फ्यूचर आपका प्लान रेडी हो गया, बट सम देखो लोगों को एक आदत होती है, इफ यू आर डूइंग द वेरी गुड प्लान, उसमें कुछ ना कुछ चीजें निकालते रहते हो। नहीं यार, आपका जो पूजा घर है ना, ये सपोज आपने क्या किया कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि ये यहाँ पे बनाएंगे पूजा घर, बट बराबर? तो लोगों को एक आदत होती है, इट्स अ ह्यूमन बीइंग, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ह्यूमन बीइंग, कि कुछ ना कुछ चीजें, ड्रॉबैक्स, गलतियां निकालते रहते हैं, यस और नो? Yes. ओके, तो यहाँ पे क्या है कि उन्होंने बोला कि आप ये पूजा घर जो यहाँ पे ले रहे हो ना, ये सही डायरेक्शन पे नहीं है, बट आपका प्लान ऑलरेडी हो गया है। बट अभी एक नहीं पूरे 10 लोगों ने बोला कि दे मैनिपुलेट यू। आपको ठीक लग रहा है कि एज पर द प्लान ये यहाँ पे होना चाहिए, करेक्ट? यस और नो? बट Yes, Yes, sir. sir. 10 लोग Yes, आके sir. आपको बोल रहे हैं कि ये डायरेक्शन पे वो ठीक नहीं है। आफ्टर सेइंग द 10 पीपल्स, आप थोड़ा मैनिपुलेट हो सकते हो, यस और नो? Yes. Sir. तो आपने क्या किया, इसके अंदर मुझे ये वाला जो चीज था ना, ये आपने जो ये पूजा घर बनवाया है ना, ये वाला चीज मुझे ना यहाँ पे नहीं चाहिए सर। मतलब आपने क्या किया, एग्जिस्टिंग चीज के ऊपर चेंजेस करवाए, स्ट्रक्चर के ऊपर चेंजेस कर रहे हैं आपने, वो पूजा घर यहाँ पे ले लिया। ओके, मैं आपको समझा रहा हूँ अल्टर। देखो अभी आप लोगों ने जो भी स्ट्रक्चर आया था वो आपने बनाया,
एज पर द आपके लॉजिक से आप लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया, बस वो 10 लोग जब आए उन्होंने आपको मैनिपुलेट किया कि ये चीज यहाँ पे नहीं यहाँ पे होना चाहिए, इट्स इन अ करेक्ट डायरेक्शन। ओके, तो आपने उसको क्या करवाया, चेंज करवाया, करेक्ट? Yes, sir. मींस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर आपने क्या किया, चेंज करवाया। ओके, ये हो गया फर्स्ट चेंज। अभी आफ्टर सम डेज कि आपका थोड़ा सा घर का कंस्ट्रक्शन ऊपर चला गया और वो बोल रहे हैं, आपने क्या किया, यहाँ पे विंडो लगवा दी। ओके, आपका जो लिविंग रूम था इसका विंडो यहाँ पे लगवाया, बट सम पीपल आर सेइंग लाइक दैट बॉस उनके बाजू वाला घर है ना, ये विंडो एग्जैक्टली उनके डोर के सामने आ रहा है एंड इट्स नॉट अ गुड थिंग। ये चीज भी आप लोगों ने सुना होगा। या फिर आपके जो बेडरूम्स है इसका विंडो और सामने वाले का विंडो सामने सामने आ रही है, सामने वाले का बेडरूम का विंडो और आपका विंडो सामने सामने आ रहा है, तो ये अच्छा चीज नहीं है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे भी मॉडिफिकेशन कर देते हो, बराबर, स्ट्रक्चर के ऊपर मॉडिफिकेशन शुरू, यस और नो? Yes, sir. ओके। और तीसरा चेंज देखो, अभी उसके बाद ना और कुछ लोग आ गए, उन्होंने बोला कि सर जो आपने पार्किंग स्पेस और गार्डन स्पेस रखा हुआ है ये ज्यादा बड़ा है, तो एक काम करो आप ना यहाँ पे ना कुछ बना लो इन बिटवीन, मतलब एडिशनल चीज डाल दो। देखो यहाँ पे क्या किया, एग्जिस्टिंग चीज मॉडिफाई किया, यहाँ पे हम लोगों ने इसको चेंज करवाया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, उसको चेंज करवाया, मतलब कुछ एडिशनल चीज लेके आए। चलो हम लोग चलते हैं डेटाबेस के ऊपर कि सर हम लोगों ने क्या किया है, एक टेबल बनवाया। ओके, उसके अंदर एक सीरियल नेम लिया हुआ है, नेम एक कॉलम लिया हुआ है, एड्रेस किया हुआ है। अभी चेंजेस क्या क्या हुआ कि अभी देखो, अभी मुझे क्वेश्चन पूछा था आप लोगों ने कि सर इसका साइज मैक्सिमम 10 ही ले लेते हैं क्योंकि इससे बड़ा नहीं आएगा, बट जो लोग आए आपके पास एक चेंज रिक्वेस्ट आया, सर इसके अंदर ना आपका 12 डिजिट जाने वाला है। ओके, एक चेंज देखो, आपका ये साइज चेंज करवाना है आपको। ओके, दूसरा चीज है सर कि मुझे ना एक एडिशनल कॉलम भी चाहिए कॉन्टैक्ट करके। ओके, दो चेंजेस देखो, फर्स्ट वन इज द चेंज डेटाबेस, सॉरी चेंज सीरियल नंबर कॉलम डेटा साइज, डेटा टाइप का साइज हमें चेंज करवाना है। दूसरा चेंज है सर, वी नीड टू ऐड न्यू कॉलम एज अ कॉन्टैक्ट, डेटा टाइप इज नंबर और साइज इज 15। ओके, और थर्ड चेंज है सर कि मेरा जो नेम है ना, इट्स ऑलवेज इन अ, ये अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर नहीं करेगा क्योंकि आपके नाम में कुछ नंबर्स नहीं आने वाले हैं, तो नाम सिर्फ हम लोग उसको क्या करना है, नेम कॉलम डेटा टाइप चेंज एज कैर ओनली। ठीक है, तो तीन रिक्वायरमेंट आया हम लोगों के पास, सर जो सीरियल नंबर कॉलम है उसका डेटा साइज मुझे चेंज करवाना है। ओके, ये मुझे 12 डिजिट तक लेके जाना है। दूसरा है वी नीड टू ऐड अ न्यू कॉलम एज अ कॉन्टैक्ट, डेटा टाइप इज नंबर, ओके, एंड 15। उसके बाद सर मुझे क्या करवाना है, नेम कॉलम डेटा टाइप, नेम कॉलम का जो डेटा टाइप है उसे मुझे चेंज करवाना है varchar tut से क्या, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे अल्टर कमांड। देखो अल्टर टेबल, अभी कौन सा टेबल करना है, कौन से टेबल के ऊपर ऑपरेशन होने वाले हैं, अल्टर डेमो 14, अल्टर टेबल डेमो 14। ओके, चलो लास्ट से शुरू करते हैं कि हम लोगों को सबसे पहला क्या करवाना है, एक काम करते हैं कि मुझे ये टेबल के अंदर ना एक कॉन्टैक्ट वाला जो कॉलम है ना वो न्यू कॉलम ऐड करके लेते हैं।
तो उसके लिए देखो, अगर नया चीज ऐड करवाना है, नया कॉलम ऐड करवाना है, यूज द ऐड कीवर्ड इनटू द ब्रैकेट, वो कॉलम का नाम डाल दीजिए, कॉन्टैक्ट, इसका डेटा टाइप हम लोगों को क्या बताया गया है, नंबर, एंड साइज इज टेबल गेट अल्टर। अभी सच में ये चेंजेस गए या नहीं गए, देन वी चेक डिस्क्राइब डेमो। आ गया सर आपका कॉन्टैक्ट? Yes, sir. कॉन्टैक्ट आ गया? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अभी एक काम करते हैं, मुझे ना सेकंड जो कॉलम है नेम, ये वाला कॉलम, इसका डेटा टाइप var2 नहीं, मुझे सिर्फ char चाहिए, रिक्वायरमेंट है। ओके, तो उसके लिए देखो अल्टर टेबल डेमो 14, अभी ऑलरेडी कॉलम है, ऑलरेडी डेटा टाइप है, तो उसके लिए यूज करना है मॉडिफाई, उसके लिए यूज करना है मॉडिफाई। क्या मॉडिफाई करना है कि नेम कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है। यहां पे सिर्फ आपको क्या करना है, char टेबल गेट अल्टर्ड, हियर टेबल गेट अल्टर्ड, आके वापस से चेक करते हैं, चेंज हो गया सर, चेंज हो गया। Yes, sir. ओके, अभी थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, चेंज द सीरियल नंबर कॉलम डेटा साइज चेंज करवाना है। यहाँ पे हम लोगों को बनाना है 10, तो उसके 12 बनाना है। तो यहाँ पे क्या क्या करोगे आप मुझे बताओ कैसे अल्टर करना है। क्या करोगे अल्टर करने के लिए फिर? Enter table demo अल्टर टेबल demo 14. Modify मॉडिफाई, क्या Modify. मॉडिफाई करवाना है, नेम का, name, सीरियल नंबर का, नंबर, serial number. 12. Okay. ओके 12 will get altered, आगे चेक कीजिए कोई में चेंजेस हुआ क्या, एज पर आवर रिक्वायरमेंट की ये चीज करना था। और एक नया रिक्वायरमेंट आया, सर मुझे ना ये एड्रेस जो कॉलम है ना, इसका कोई जरूरत नहीं है, एड्रेस कॉलम का मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो क्या करोगे, Alter table demo 14. Delete. डिलीट नहीं हो, यहाँ पे Drop file. टॉप करेंगे, Drop. अल्टर टेबल डेमो 14 14. Drop. यहाँ पे ड्रॉप क्या कर रहे हो, कॉलम, ड्रॉप कॉलम, और कॉलम का नाम क्या है, Address. Address. will get altered, आगे चेक कीजिए, लगा है सर आपको ये वाला कॉलम भी आपके Okay. पास बचा, इतना ही है, इतने ही कॉलम के नाम बचे, इतना ही स्ट्रक्चर बचा। समझ में आया? देखो अल्टर के साथ हम लोगों ने एक नया एक कॉलम ऐड करवाना है, देन अल्टर के साथ ऐड यूज कीजिए। एग्जिस्टिंग कॉलम के ऊपर अगर उसका डेटा टाइप चेंज करवाना है या साइज चेंज करवाना है, आगे जाके कंस्ट्रेंट आते हैं, कंस्ट्रेंट चेंज करवाना है, तो उसको हम लोग क्या यूज करेंगे, अल्टर विथ मॉडिफाई। अगर आपको स्ट्रक्चर के अंदर एक कॉलम का जरूरत नहीं है और आपको बोला गया है कि वी नॉट नीडेड दैट कॉलम, देन आपको क्या करवाना है, अल्टर डेमो ड्रॉप द दैट पर्टिकुलर कॉलम। क्लियर? और आपका DDL जो कमांड होती है, मतलब क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, ये जो है ना, ये ऑटो कमिटेड होती है। मतलब आपने एक बार चेंजेस कर दिया, इट्स नेवर गेट रोल बैक, आप उसको अंडू नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान में रखो। तो गुड प्रैक्टिसेस के लिए क्या करना है, जब भी कोई आप स्ट्रक्चर के ऊपर चेंज कर रहे हो या फिर स्ट्रक्चर के ऊपर चेंज कर रहे हो, तो वहां पे ना हमेशा वो टेबल का बैकअप ले लीजिए। मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू क्रिएट द टेबल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टेबल, तो इसका वो क्या बनेगा, बैकअप बनेगा। यहाँ तक समझ में आया सर? Yes. सर एक डाउट है कि जैसे नंबर का मैक्सिमम लिमिट 38 बाइट है,
सो varchar में भी कोई लिमिट है, varchar 2 में कोई लिमिट है कि वी कैन पुट एनी नंबर? varchar 2 का लिमिट है 4000 बाइट, उसके ज्यादा नहीं 4000। बना सकते आप। ओके var ओके का 2000 बाइट, varchar 2000 बाइट, ये मैक्सिमम लिमिट है उसका। कैर को, अच्छा ओके ओके सर। अभी देखो, सपोज आपका रिक्वायरमेंट है कि सर उन्होंने बोला कि मुझे ना ये दो कॉलम नहीं चाहिए। मैं आपको एक एडवांस चीज बताता हूँ। अभी उन्होंने बोला कि मुझे ये 2 कॉलम नहीं चाहिए। ओके, ये 2 कॉलम नहीं चाहिए, तो आप हर टाइम 2 क्वेरी लिखोगे क्या? अल्टर टेबल डेमो ड्रॉप कॉलम कॉलम नेम, ऐसा तो नहीं करोगे। तो एक ही क्वेरी में 2 कॉलम जाने चाहिए, ड्रॉप होने चाहिए। ओके, देखो अल्टर टेबल डेमो 14, ओके, ड्रॉप इनटू ब्रैकेट आपको क्या करवाना है, नेम, और दूसरा है कॉन्टैक्ट, ये मुझे नहीं चाहिए। ओके, आके उसको चेक करते हैं, दिए गए सारे। मल्टीपल कॉलम ड्रॉप करने के लिए आप ये कमांड यूज कर सकते हो। अगर सिंगल कॉलम ड्रॉप करना है देन गो विद दिस वन। ओके, अगर आपको मल्टीपल कॉलम करवाने हैं तो आप क्या करोगे, ये वाला करोगे, और सिंगल कॉलम के लिए ये वाला चीज करोगे। हो सकता है ना रिक्वायरमेंट कि आपका टेबल के अंदर मल्टीपल कॉलम ड्रॉप होने वाले हैं, बराबर, तो वो सिनेरियो में आप क्या करोगे, अल्टर टेबल डेमो ड्रॉप, और जितने भी कॉलम के नाम आपको डालने हैं वो आप डाल सकते हो। इज इट क्लियर? Yes, sir. सर ये मल्टीपल टेबल ड्रॉप करने के बाद उसको वापस अंडू नहीं कर मल्टीपल सकते? टेबल नहीं, आपका सेंटेंस गलत है सर। मल्टीपल टेबल नहीं, मल्टीपल कॉलम की बात कर रहे हैं। कॉलम सर अंडू नहीं कर सकते ना उसको वापस? नहीं, ये ऑटो कमिटेड है। वंस यू मेक द चेंजेस इट डायरेक्टली रिमूव फ्रॉम योर सिस्टम। अभी इसके बाद है हम लोगों के पास और एक कमांड, टेबल ड्रॉप करना। ये तो सीख गए सर कि कॉलम ऐड कैसे करना है, कॉलम मॉडिफाई कैसे करना है, कॉलम ड्रॉप कैसे करना है, बट व्हाट अबाउट द टेबल? मुझे होल टेबल ही नहीं चाहिए। देखो, तो उसके लिए बहुत इजी है। ओके, ड्रॉप टेबल एंड टेबल नेम, होल टेबल गेट इज ड्रॉप। अभी जाके चेक कीजिए, ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब होल टेबल ड्रॉप हो गया। गॉट इट? Yes, sir. होल टेबल ड्रॉप हो गया विद द हेल्प ऑफ अल्टर। अगर आप कॉलम ड्रॉप कर रहे हो तो कॉलम ड्रॉप होता है, बट डायरेक्टली ड्रॉप टेबल टेबल नेम किया तो होल टेबल ड्रॉप हो जाएगा। ओके, बट यहाँ पे ना देखो, हमने सीखा कि कॉलम ड्रॉप करने के बाद वापस रिवर्ट नहीं कर सकते, हम उसको अंडू ऑपरेशन नहीं कर सकते। टेबल भी, ये भी ड्रॉप कमांड इज आल्सो अ डीडीएल कमांड। ओके, तो ये भी ऑटो कमिटेड है, बट इसको रोल बैक नहीं कर सकते। बट 11G के अंदर ना एक फीचर आया। अभी देखो, मैं आपको फीचर बता रहा हूँ, जो कि सॉरी 10G में एक फीचर आया था। बिफोर 10G आपने एक बार टेबल को ड्रॉप किया तो वो वापस नहीं आता था, बट आफ्टर 10G वी हैव द वन फीचर कि हम लोग वो ड्रॉप किए हुए टेबल को वापस लेके आ सकते, कॉलम को नहीं है। अगर आपने कॉलम को ड्रॉप किया तो उसको वापस लेके नहीं आ सकते, बट अगर आपसे गलती से टेबल ड्रॉप हो गया, गलती से टेबल ड्रॉप हो गया, हम उसको वापस लेके आ सकते थे। इट इज द फीचर ऑफ द 11G। 10G में इंट्रोड्यूस हुआ था, बट इट्स कंप्लीटली वर्किंग ऑन 11G। इट इज द फीचर ऑफ द 11G कि अगर गलती से, देखो गलती हो सकती है, अगर आपने गलत यहाँ पे ये वाला कमांड चलाया और गलती से ये मेरा टेबल ड्रॉप हो गया, अभी उसको मुझे रिकॉल करवाना है। ओके, तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो मैंने टेबल ड्रॉप कर दिया, उसके बाद डिस्क्राइब किया, ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट का एरर आ रहा है, मतलब डेमो 14 अभी आपके सिस्टम में है? नो सर। डेमो 14 आपके सिस्टम में नहीं। No, sir. ओके, आपको पता है डेमो 14 किस तरीके से था, ये तरीके से। आपने उसको गलती से ड्रॉप किया, बट अभी मुझे उसका रिक्वायरमेंट है, मुझे वो सिस्टम में चाहिए, तो उसके लिए ना
आपके 11G के अंदर ना एक फीचर आया था, इज कॉल्ड एज अ फ्लैशबैक। आप उसको फ्लैशबैक कर सकते हो। देखो कैसे फ्लैशबैक किया जाता है। फ्लैश बैक टेबल, सिर्फ टेबल को फ्लैशबैक कर सकते हो। देन टेबल नेम, आपका टेबल का नाम था डेमो 14, फ्लैशबैक टेबल डेमो 14 टू D4 upload, फ्लैशबैक टेबल डेमो 14 टू B4 upload। मतलब इसका मतलब देखो, सीधा आप पहले उसको पढ़ लो और आप मुझे मीनिंग बताओ। फ्लैशबैक टेबल डेमो 14 टू B4 ड्रॉप, मतलब उसका ड्रॉप होने से पहले जो भी सीन था, जो सिचुएशन था, वो मुझे चाहिए। तो फ्लैशबैक हो गया। अभी जाके चेक करते हैं कि ये वाला टेबल आपके सिस्टम में है। आ गया आपका टेबल वापस सिस्टम में, आ गया। यूजिंग दिस क्वेरी अगर गलती से कोई टेबल ड्रॉप हो जाती है तो आप उसको क्या करोगे, फ्लैशबैक करोगे। क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके। अभी कुछ लोगों का कहना है, मतलब बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि सर मैंने बहुत सारे टेबल ड्रॉप कर दिया, मैंने 10-12 टेबल ड्रॉप कर दिया, बट उसका मुझे कोई जरूरत नहीं है अभी। बट ये टेबल जाते कहाँ है? वंस यू ड्रॉप इट, सब लोग विंडो यूज करते हैं, विंडोज आपके लैपटॉप के ऊपर जो विंडोज है, अगर आपने सिर्फ डिलीट करवाया किसी भी, अगर सपोज आपने एक फोटो को डिलीट करवाया, वो कहाँ पे जाता है? सिर्फ डिलीट करवाया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शिफ्ट डिलीट। वंस यू अप्लाई द शिफ्ट डिलीट देन इट्स गेट परमानेंटली डिलीटेड। रिसाइकल आपने बिन, डिलीट सिर्फ डिलीट करवाया तो ये कहाँ पे जाता है? रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन में जाता है, बराबर। Yes, सेम sir. डेटाबेस के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, जैसे ही आप किसी टेबल को ड्रॉप कर देते हो तो वो टेबल चला जाता है आपके रिसाइकल बिन से। अभी विंडोज के ऊपर आप रिसाइकल बिन से क्या करते हो? अगर आप उससे गलती से डिलीट हो गया और वो रिसाइकल बिन में चला गया, देन व्हाट वी डू? Restore. जाके उसके ऊपर राइट क्लिक करके रिस्टोर करते हो। रिस्टोर करने के बाद वो क्या होता है, जहां से डिलीट हुआ है वापस वहां पे चला जाता है, बराबर। Yes. सेम चीज फ्लैशबैक करता है आपके डेटाबेस के अंदर। अगर गलती से कोई टेबल आपसे ड्रॉप हो जाती है तो वो चली जाती है रिसाइकल बिन से, और फ्लैशबैक्स का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, उसको वापस लेके आएंगे सिस्टम के अंदर। जैसे कि आप रिस्टोर वहां पे यूज करते थे, यहाँ पे आपको क्या करवाना है, फ्लैशबैक। समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो, मेमोरी का कैसे रहता है सर? फिर वो रिसाइकल के दिन मतलब मेमोरी यूज होती है, तो इसमें भी यूज होती है डिलीट करने के बाद। देखो डिलीट होने के बाद, डिलीट करने के बाद क्या होता है कि आप जब भी कोई डिलीट करते हो तो वो जाता है आपके रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन इज ऑब्जेक्ट ऑफ योर डेटाबेस। अभी डेटाबेस के लिए कुछ टेबल स्पेसेस बनाए जाते हैं, मतलब वी आर एलोकेटिंग द सम मेमोरी। ओके, 1 मिनट में आपको वो दिखा देता हूँ कितना मेमोरी। कल श्रीकांत आर यू कॉल? यस सर। कल देखो हम लोग एक चीज कर रहे थे, वो स्नैपशॉट भेजोगे क्या पे आपने? हाँ हाँ भेजता हूँ मैं। कल एक श्रीकांत को एक इशू आ रही थी, देखो उसको ना एक इशू आ रहा है कि सीरियल नंबर वाला, कि उसका जो इंस्टेंट है इज नॉट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। तो देखो जब इंस्टेंट स्टार्ट होता है, मतलब आप जब जैसे ही ओरेकल सर्वर स्टार्ट करते हो तो आपका इतना मेमोरी एलोकेशन होता है। टोटल सिस्टम ग्लोबल एरिया इतना है, फिक्स साइज इतना है, वेरिएबल साइज इतना है, डेटाबेस बफर इतना है, रेडो बफर इतना है। ओके, और कुछ होते हैं, ये उसको एरर आ रही है कंट्रोल फाइल के अंदर। ये जो एलोकेशन है ये कब किया जाता है, जब आपके ये आपके यूजर क्रिएट किया जाता है, तो वहाँ पे टेबल स्पेसेस बनाए जाते हैं, तो आपके डेटाबेस के लिए कितना साइज होता है। अभी चलो यहाँ पे आते हैं वापस से अपने कॉन्सेप्ट पर। अभी ये टेबल गया रिसाइकल बिन
वापस लेके आना है। मतलब जैसे ही आपके सिस्टम से वो निकला जाके गया, मतलब सिस्टम से इट्स नॉट रिमूविंग डायरेक्टली, इट्स गोइंग टू द रिसाइकल, तो उसको वहां पे एलोकेशन हो गया, वापस से वहां यहाँ लेके आए, वापस यहाँ, मतलब वहां का रिलीज हो गया, यहाँ पे एलोकेट हो गया, मतलब मेमोरी का कोई कनेक्शन आएगा नहीं आएगा। जब तक यहाँ पे था उतना साइज इसके पास था, रिसाइकल बिन में गया, यहाँ से साइज रिलीज होके वहां पे एलोकेट हो गया, वहां से वापस यहाँ पे आ गया, मतलब इट्स ओनली द exchange of the size, it's not allocating the much more. Yes, sir. Suppose ये टेबल को मैं क्या करता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप टेबल डेमो 40, अभी ये कहाँ पे चला गया सर, रिसाइकल बिन। बट आपका रिक्वायरमेंट है, देखो जैसे हम विंडो पे शिफ्ट डिलीट करते हो, मतलब परमानेंटली चला जाएगा, वैसा भी हम लोग यहाँ पे कर सकते। देखो मैं वापस उसको लेके आता हूँ, विद द हेल्प ऑफ द फ्लैशबैक आ गया मेरा सिस्टम के अंदर, ये टेबल मेरे पास। अभी मुझे ना परमानेंटली ड्रॉप करवाना है, मुझे रिसाइकल बिन में नहीं पहुंचाना है, मुझे शिफ्ट डिलीट करना है, तो उसके लिए ड्रॉप टेबल डेमो 40 पंच। आप जैसे ही पंच करोगे ये परमानेंटली रिमूव हो जाएगा। लेट्स सी, इसको फ्लैशबैक कर सकते हैं, फ्लैशबैक कंप्लीट हो गया, चेक करते हैं टेबल क्या है। अभी देखो ये टेबल दूसरा है, ये टेबल नहीं है हमारा टेबल कौन सा था, कौन सा था टेबल, ये वाला था, और ये टेबल कौन सा है जो मैंने मॉर्निंग में ड्रॉप किया था, ये कल हम लोगों ने बनाया था सैंपल, अलग अलग है ना। ये वहां पे था सेम नेम का, इसलिए वो क्या हो गया, वहां से फ्लैशबैक हो गया। ओके, वापस मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, अभी कोई नहीं, अभी आपका रिसाइकल बिन में, अभी आपका ये भी रिक्वायरमेंट होगा सर, जैसे हम लोग रिसाइकल बिन क्लीन करते हैं, इसको भी क्लीन करते हैं। लुक करो गाइस, ना बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है। ओके, अभी रिसाइकल क्लीन करवाना, आप करते हो ना रिसाइकल बिन क्लीन, यस सर। देखो रिसाइकल बिन में क्या क्या है चेक कर लेते हैं। स्क्राइब रिसाइकल, इतने सारे टेबल है सर। देखो ऑब्जेक्ट नेम के, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये उसके रिसाइकल बिन के कॉलम है, ऑब्जेक्ट नेम, ओरिजिनल नेम, ऑपरेशन टाइप, टीएस नेम, क्रिएट टाइम, ड्रॉप टाइम। ओके, एक काम करता हूँ मैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट नेम, इतने सारे टेबल है मेरे पास। ओके, मतलब रिसाइकल बिन में एज इट इज नेम नहीं रहता है, इट्स अ कन्वर्टेड नेम। तो मैं क्या करता हूं, रिसाइकल बिन को ही मैं क्या करता हूं, अभी हम लोगों ने एक टेबल ड्रॉप किया है, वो कहाँ पे है, रिसाइकल बिन में है। अभी उसका नाम हम लोगों को यहाँ पे आइडेंटिफाइड नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ एनक्रिप्टेड फॉर्मेट। तो मुझे रिसाइकल बिन से भी उसको क्या करवाना है, रिमूव करवाना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो सर्च टेबल, टेबल नेम हमारा था डेमो, मर्ज हो गया। अभी हमारा टेबल रिसाइकल बिन में था, उसको वहां से फ्लैशबैक कर लेने के लिए फ्लैशबैक
मतलब आपने अगर नोट्स कैरी मैंने आपको बताया, अगर आपको टेबल परमानेंटली ड्रॉ करवाना है देन पर्च टेबल नेम करवाना है। ओके, अगर आपको पूरा रिसाइकल क्लीन करवाना है देन वी आर यूजिंग द पर्च एंड रिसाइकल bin। क्लियर? गॉट इट? Yes, sir. सो आज के लिए आप लोग बोलते हैं, फ्रॉम टुमारो वी आर स्टार्टिंग नेक्स्ट सीरियल ओके। Okay, sir. Okay, sir. या थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। Thank you. sir. Thank you, sir. Have a nice day.